Okay, so if you have clicked on this video and you're going to watch the entire video, by the end of this video you will make your first 20 to 50,000 rupees within 1 month. Okay, that sounds crazy. Okay, a little bit about me. I'm Samanyu Coates. I have pitched to Tanmay Bhatt. I've hopped on multiple calls with him. I have worked with Prakhar Gupta. I went to his office, met him, made multiple AI automations for him, and I've worked with multiple startup founders. I pitched to Gully Labs, Niche. I've gotten replies from crazy people. Now, how do I do all this? Initially for a year, I used to sell AI websites to people with no hope. For the first 5 to 6 months, I just made 1,725 rupees. That's it. Yes. I remember that exact amount, and now I am working with these people within just a change of 4 to 8 months. Now, how is that possible? There was a mindset shift. There were so many things which happened. So you'll be able to make your first 20 to 50,000 online by watching this video. So stick till the end. Okay, so we're going to be talking about multiple things. We're going to be selling AI websites. You can use the initial 20 to 50,000 rupees for anything, right? So we'll be talking about sales tactics कि हमें कितने sales tactics करने हैं, कितना volume हमें करना है एक दिन में, जो ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं कोल्ड कॉल्स करते हुए, जो कोल्ड कॉल करते हुए हमें स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, कैसे वेबसाइट्स को बनाना है, कैसे क्लाइंट को देना है, जो क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स. आई हैव मेड द 20 to 50,000 rupees online. Now what do I do next? I am confused. I can't keep selling websites because it's physically impossible to keep doing it. The market is so commoditized. Everyone is selling to the same set of people with the same set of skills. Do you think you are the only person who knows how to make AI websites? Almost every kid knows how to do that. So how do you actually use that 20 to 50,000 rupees online to build an actual business, find real people, and how to actually move on with it? Then I'll give you daily actionable steps. तुम ये वीडियो देखने के बाद में तुम क्या कर सकते हो, तुम आज से क्या implement कर सकते हो to move towards making that first 20 to 50,000 rupees online. I had to spend hours on this, but in return I got to spend time with such people. I got to work with such people. Now, is that worth it? If it's not worth it for you, you can hop off. It's not a worry. But if you're actually looking forward to this, if you're actually willing to invest time in this, please wait, because you'll come thanking me in the comment like a month or two later. Okay, sales tactics, you might be confused. So how are we actually even going to make that first initial 20 to 50,000 rupees online, right? We're going to sell AI websites. हम AI से बना के websites बेचेंगे, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे steps होते हैं, ठीक है? It's not that easy. It's going to be a full masterclass on how you make money, on how you sell websites, and okay, so moving on. सेल्स टैक्टिक्स, हम क्या किसको सेल कर रहे हैं? सेल्स में एक मेन चीज़ होती है, एक ICP होना क्लियर होता है. ICP का मतलब होता है आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, है ना? अब व्हाट डज दिस मीन? आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, हम किसको बेच रहे हैं? वी आर गोइंग टू सेल टू लोकल बिजनेसेस. अब मैं अगर जाके सर्च करता हूँ डेंटिस्ट नियर मी, ठीक है, आई विल सर्च दिस अप. मुझे दिखा टूथ सेवर डेंटल क्लिनिक. दे हैव 271 रिव्यूज़, 4.8 स्टार्स, बट दे डोंट हैव अ वेबसाइट. आई कॉल देम अप, आई से हे गाइस, आई सॉ योर क्लिनिक. बहुत अच्छा क्लिनिक था, मैं आया भी था, बट देन आई सॉ कि आप लोग की वेबसाइट नहीं थी, एंड मैंने देख के आपके लिए वेबसाइट बनाई है. वुड यू गाइस लाइक टू टेक अ लुक एट इट? बूम, वी बी लाइक दिस गाय ऑलरेडी मेड अ वेबसाइट. श्योर, आई टेक अ लुक एट इट. बूम, यूल गेट मेक एन ईजी 5 to 10,000 विद जस्ट वन कॉल. नाउ ऑफकोर्स दिस डजंट वर्क आउट, बट मैं अभी मेन बेसिस बता रहा हूँ कि हम कैसे, लाइक व्हाट विल बी द बिजनेस मॉडल, राइट? सो उसके लिए हम सेल्स टैक्टिक्स की बात करेंगे, वॉल्यूम की, हमें कितनी कोल्ड कॉल्स करनी है, ऑब्जेक्शंस क्या आ सकते हैं, स्क्रिप्ट. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस, राइट? सेल्स टैक्टिक्स. अब सेल्स में having a clear ICP is very important. Having a clear ICP is very important for you too. Okay, so your clear ICP will be local businesses. Local businesses में भी बहुत types होते हैं. अब मान लो you have an interior designing company, right? तुम interior designing करते हो and your business runs on leads. Your business rarely works on referrals, ठीक है? बहुत कम काम करता है, because so you get, मान लो तुम्हें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कराना है, ठीक है? अपने घर में तुम्हें काम कराना है, तुम किसी से पूछोगे, दूसरे से भी पूछोगे, तुम्हें 5 लोग आएंगे. 5 people will come to you. So 5 people will come to you कि इनसे करा लो, इनसे करा लो, इनसे करा लो, इनसे करा लो. It's going to be really confusing for you to decide. But if that person has a proper website, you're getting a testimonial from someone you know, you're getting recommended, and that website is highly converting, you're going to go to that person, ठीक है? तो you need to pitch that. अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले को you will pitch leads कि I will help you get 10 to 20 leads per month. अब डॉक्टर के साथ ये नहीं है, डेंटिस्ट के साथ ये नहीं है. डेंटिस्ट के पास क्लाइंट्स भर रखे हैं, उसके पास पेशेंट्स भर रखे हैं, उस बंदा ये
अगर तुम बीमार हो गए तुम डॉक्टर के पास खुद जाओगे ना, तुम ये थोड़ी देखोगे कि यार ये डॉक्टर कितना अच्छा कराता है। यू जस्ट नीड टू, यू विल जस्ट गो टू द डॉक्टर एज फास्ट एज यू कैन। तुम किसी डॉक्टर से पूछो, दे आर एक्सट्रीमली बिजी, 5 से 9 तक, सुबह 9 से लेकर 5 तक दे आर एक्सट्रीमली फुल, लाइक पूरा दिन काम करते हैं वो। दे डू नॉट केयर अबाउट लीड्स। उनको यू विल सेल अ रेपुटेशन। उनको यू विल सेल कि व्हेन समवन सर्चेज अप योर क्लिनिक, योर नेम शुड पॉप अप। हम SEO अच्छे से करेंगे, द वेबसाइट विल लुक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, ऑल योर सर्टिफिकेट्स, ऑल योर फोटोज, ऑल योर ऑल योर हैप्पी पेशेंट्स, एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड देयर। आपकी सारी इन्फो होगी। तो फिर उसको प्राइड के सेंस में दिखाना है। उनको लीड से मतलब ही नहीं है, वो उनको पहले ही काम इतना है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट लीड्स। सो तुम्हें ये भी सोचना है कि तुम किसको बेच रहे हो, तुम क्या बेचोगे। तुम 1-2 बार किसी से बात करोगे तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि सेल्स टैक्टिक क्या यूज़ करनी है, ठीक है। तो हैविंग अ क्लियर ICP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा क्लियर ICP है लोकल बिजनेसेस। अब लोकल बिजनेसेस में भी बहुत सारी नीश होते हैं यार। तुम जिम्स को कॉल करोगे, MMA जिम्स को कॉल करोगे, कैफेज को कॉल करोगे, सुपर मार्केट्स को कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे, है ना। तुम्हें कोल्ड कॉल्स करनी है। सो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, बट इट माइट नॉट वर्क आउट फॉर यू कंसिडरिंग कि तुम किस एरिया में रह रहे हो, ठीक है। उनको लीड्स भी काफ़ी अच्छी आती है, उनको रेफरल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, उनको पैसे भी आ जाते हैं। एंड समटाइम्स दे डोंट केयर अबाउट देयर रेप्यूटेशन, दे डोंट केयर दैट मच अबाउट द रेप्यूटेशन, ठीक है। तो दैट माइट एंड अप बीइंग अ इशू। इंटीरियर डिज़ाइनर्स में एक ये दिक्कत आ सकती है कि दे विल आस्क यू फॉर गारंटी फॉर लीड्स। एनी लीड बेस्ड बिजनेस विल आस्क यू फॉर गारंटी ऑफ लीड्स, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल वंस यू स्टार्टिंग आउट। यार तुम स्टार्ट आउट कर रहे हो, तुम कैसे गारंटी कर सकते हो लीड्स? तुम्हें पता ही नहीं है कि लीड्स कैसे गारंटी करनी है, लीड्स आती कैसे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू डू दैट। अब तुम डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, कायरोप्रैक्टर्स, स्पाज, है ना, ऐसे द पीपल हु ऑलरेडी हैव पेशेंस, द पीपल हु वांट अ गुड पोर्टफोलियो, दे वांट टू शो ऑफ कि भाई मेरा कोई नाम सर्च करेगा, मेरा ये वेबसाइट आनी चाहिए सबसे ऊपर। दैट इज़ व्हाट यू गोइंग टू पिच। उन लोगों को पिच करो बिकॉज तुम्हें अच्छी वेबसाइट बनाना ये ऐसे आता है, ठीक है। मैं अभी टेक पार्ट में बता भी दूंगा, इट्स सुपर ईजी। तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा लगेगा इतना टॉप नॉच वेबसाइट बनाने में, और तुम 5 मिनट में ऐसे प्रोटोटाइप तैयार कर दोगे, तो फिर इट्स लाइक नॉट एन इशू, ठीक है। तो तुम ऐसे क्लाइंट, एक बार सोचो, ठीक है, बैठो सोचो कि किनको ऐसे वेबसाइट चाहिए, कि ऐसा कौन हो सकता है जिसको ऐसी वेबसाइट चाहिए होगी जो उनको रॉब जिताना हो, जिनको शो ऑफ करना हो। ऐसे लोगों को टारगेट करने का ट्राई करो। दैट इज़ द सेल्स टैक्टिक। यू नीड टू आइडेंटिफाई देयर you want to identify their pain point and pitch it to them. Okay, so we are done with sales tactics. वॉल्यूम, अब एक दिन में कितनी कोल्ड कॉल्स करनी है ना। सो लेट्स गिव, ओके, नाउ कमिंग टू स्क्रिप्ट। तुम कॉल लगाओगे, क्या बोलोगे, कहाँ से लाओगे नंबर्स, है ना, कहाँ से लाओगे नंबर्स, क्या देखोगे, किसको कॉल करना है। अब मान लो वी गो फॉर द डेंटिस्ट थिंग, ठीक है। डेंटिस्ट को अपना शो ऑफ करना है, ठीक है। दे डोंट गिव अ फक अबाउट क्लाइंट्स, कि उनको कस्टमर्स आ रहे हैं यार, उनको नहीं चाहिए वेबसाइट के लिए। ओके, सो कमिंग टू स्क्रिप्ट्स, तुम कहाँ से नंबर निकालोगे, किसको कॉल करना है, यू आर रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। वी वेंट टू गूगल मैप्स, वी वेंट टू गूगल, ठीक है। इसको गूगल मैप्स में जाते हैं, ओपन इन मैप्स, ठीक है। लेट्स सर्च अप, हम डेंटिस्ट वाले ही प्रेफर करते हैं, ओके, क्योंकि वी नो डेंटिस्ट, उनको शो ऑफ करना है। लेट्स गो फॉर दैट वन। एंड डेंटिस्ट इज समथिंग जो कि बहुत लोग करते हैं, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, पीपल आर ऑल्सो गोइंग फॉर द डेंटिस्ट नीश, सो देयर इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन। पीपल ने उनको पहले से कोल्ड कॉल कर रखा होगा, तो फिर डोंट गो फॉर इट इनिशियली। किसी रैंडम जगह ट्राई कर लो, ठीक है। रियल एस्टेट वालों का ट्राई कर लो, इवन इफ यू गेट नो, यू जस्ट ट्राइंग टू गेट एक्सपीरियंस इनिशियली, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। स्टार्टिंग में स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आते हैं, यू कैन इग्नोर दैट। अब मैं देखता हूँ टूथ सेवर, राइट, इनकी वो नहीं है, तो फिर इनकी वेबसाइट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उठाऊँगा कॉल। मैंने उठाया फ़ोन, मैंने लगाया कॉल, आई पुट दी फ़ोन नंबर निकाला, ऐसे, हेलो, क्या मेरी बात टूथ सेवर डेंटल क्लिनिक में हो रही है? दिल से येस, हाँ हो रही है। देन आई से, मैंने आपकी गूगल प्रोफाइल देखी, इट हैड उस पर 4.8 स्टार्स थे, 271 रिव्यूज़ थे। मैं आपकी लाइक पहले टेम्पलेट पे नहीं जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि हमें क्या पॉइंट आउट करना है, ठीक है। मान लो कि मुझे कॉल आता है, कोल्ड कॉल आता है, और मैं डेंटिस्ट क्लिनिक है भाई। अब मैंने जैसे ही सुना ना गूगल प्रोफाइल, मुझे लगा अरे भाई ये वेबसाइट बेचना है, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट टू डू। जिससे कि
हेलो आप टूथ सेवर डेंटल क्लिनिक से बात कर रहे हैं, एंड देन टॉक अबाउट समवन कमिंग देयर। यू नीड टू मेक श्योर कि उनको लगना चाहिए कि तुम वहाँ पे आए थे। अरे शिट, ऐसा हुआ है। चाहे तुम नहीं भी गए हो तो फिर लाइक ऐसे बोलना है कि माई मौसी केम टू योर क्लिनिक लास्ट वीक एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। फिर मैं आपकी गूगल प्रोफाइल देख, फिर उन्होंने आपका गूगल प्रोफाइल भेजा था मुझे, एंड मैं देख रहा था एंड आपकी वेबसाइट नहीं थी, तो फिर उन्होंने भी मुझे एडवाइस करा था। एंड मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है। मैंने देखा था कि आपके 4.8 स्टार्स थे, 271 रिव्यूज़ थे, बट उसके बाद भी आपने वेबसाइट नहीं बनवाई हुई थी। आई रियली थिंक यू गाइज नीड अ वेरी ऑसम वेबसाइट। तो फिर मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छी वाली लाइन मत भी नहीं भी ऐड करोगे तो सही रहेगा। बहुत अच्छी लगी तो इट्स कूल, वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर नो वरीज एट ऑल। तो फिर अगर आपको देखनी है तो आप बताइए, अगर नहीं देखनी तो इट्स ओके। तो फिर मोस्टली दिल से कि हाँ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। समटाइम्स दे डोंट रिप्लाई, समटाइम्स दे डू। दिस इज़ गोइंग टू बी दी स्क्रिप्ट। ये बेसिक स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चेंजेस तुम कर सकते हो विच वी विल टॉक अबाउट लेटर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे यार कि वेबसाइट में हर बार बनानी पड़ेगी तब जाके कोल्ड कॉल करना है क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वेबसाइट का प्रोटोटाइप बनाने में तुम्हें 5 मिनट लगता है। रुको मैं यहाँ जाता हूँ, मैं बैक करता हूँ। गिव मी अ डेंटल क्लिनिक वेबसाइट इन नोएडा गोर सिटी 2 एंड आई विल प्रेस बिल्ड, ठीक है। अभी हम अपना वापस उस पर जाते हैं, 5 मिनट में चेक करेंगे इफ़ इट्स अ गुड वेबसाइट और नॉट, ठीक है। लेट्स गो हियर, बैक। अब मैंने ऐसा क्या क्या बोला, लेट्स ब्रेक इट डाउन, जिससे कि तुम जो भी तुम्हारी नीश है तुम उसमें अप्लाई कर पाओगे, है ना। फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि उसमें पर्सनल कनेक्ट है, कि तुम उनसे मिले, उनको ऐसा लगना चाहिए। अब अगर मेरी मौसी मिली है, उन्होंने मेरी मौसी से बात करी होगी, अब मेरी मौसी इज़ देयर क्लाइंट, सो ही कांट बी रूड टू मी, ठीक है। अब वो क्लाइंट के रिलेटिव वगैरह से रूड हो गए तो फिर इट्स गोइंग टू बी ऑफल। अब तुम अगर कोल्ड कॉल कर रहे हो, तुम तो सेल्स गाय हो ना, तुम्हारे से क्यों नहीं होंगे वो रूड, तो सीधा कॉल कट कर देंगे। तुम्हारी मौसी उनकी क्लाइंट है, फिर वो अगर तो वो इफ़ ही गेट्स रूड टू यू, तुम्हारी मौसी आना जाना बंद कर देंगी उनके यहाँ पे। तो फिर उनको ऐसा फील होना चाहिए कि अगर मैंने इसका कॉल कट कर दिया तो फिर मेरे, ठीक है, सेल्स पिच नहीं मिलेगी मुझे, बट फिर मेरा जो एक क्लाइंट है वो पता नहीं कितने हज़ार रुपए मैं उससे बना सकता हूँ आने वाले कमिंग मंथ्स में, वो मेरा चले जाएगा जस्ट बिकॉज मैंने कॉल कट कर दी। तो फिर उसे ऐसा फील कराना है कि थोड़ा सा उसको अथॉरिटी फील दिखानी है अपनी, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम किसी फैमिली मेम्बर का नाम लेके बताओ, क्योंकि अगर तुम सही में गए हो तो फिर इट्स गुड, अगर नहीं गए हो सही में तो फिर थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन, देन आई सेड शी केम टू मी एंड शी एडवाइज्ड मी टू, ठीक है। उनके क्लाइंट ने एडवाइस करे, वापस से अथॉरिटी वाला सीन हो गया कि यार अगर मैंने अभी कॉल कट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तुमने बोला कि शी एडवाइज मी टू, एंड मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है। अब बहुत हार्श रिएक्शंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, जिनके हम ऑब्जेक्शंस वाले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। फिर तुम्हें उन्हें अप्रिशिएट करना है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा रिव्यू दिया। मैंने आपकी गूगल प्रोफाइल भी देखी थी, उस पर इनिशिएट नहीं करना कि मैंने गूगल प्रोफाइल से ये बनाया, भी देखी थी कि बाकी तो मेरी मौसी ने बताया ऐसा करना है। मैंने आपकी गूगल प्रोफाइल भी देखी थी, उस पर मैंने देखा 4.8 स्टार्स एंड 271 रिव्यूज़, ये तो बहुत ही अच्छा है। बट आपकी फिर भी वेबसाइट नहीं थी, सारे आसपास वालों की तो थी वेबसाइट। तो आई रियली थॉट कि आपके लिए होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है। बूम, लेट्स गो फॉर डॉक्टर झा। मैंने आपके लिए वेबसाइट बनाई है। मेरे पापा आपके यहाँ आए थे, उन्होंने टूथ इम्प्लांट कराया था एंड ही वाज सो हैप्पी। मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, उन्होंने मुझे आपके लिए बनाने के लिए बोला था। एंड मैंने आपकी ना गूगल प्रोफाइल भी देखी थी, उस पर 4.9 स्टार्स, 34 रिव्यूज़, ऑलमोस्ट 5 स्टार ही है वो। एंड आपकी फिर भी वेबसाइट नहीं थी, तो फिर आई रियली थॉट कि वेबसाइट बना सकता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आसपास वाले डेंटल क्लिनिक सबकी वेबसाइट थी, है ना। अब मैं बोले जा रहा हूँ, उसको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया अभी तक, मान लो, ठीक है। तो फिर अगर तुम ऐसे सेल्स स्क्रिप्ट करने लगे तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यू वांट टू हियर आउट द पर्सन। तुम कभी रिसेप्शनिस्ट के पास रखते हो, तुम अपनी पूरी पिच दे दोगे, तुम्हें पता चलेगा कि उसका बेटा बात कर रहा है ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो यू नीड टू वेट, जस्ट गो अबाउट कि मेरे पापा आपके यहाँ पे आए थे लास्ट वीक, ठीक है, दिल से हाँ। एंड तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस करा था कि उन्होंने बताया था कि ही हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। टूथ चेकअप बोल सकते हो, ठीक है। जो भी तुम नीश के हिसाब से कर रहे हो, थोड़ा सा बेसिक बोलना, जिससे कि यार उनको ऐसा ना रहे कि भाई तो पूरा ही झूठ कह रहा है ना। लास्ट वीक ऐसे वगैरह कुछ करके बोल देना कि कुछ दिन पहले आए थे, थोड़ा सा एग्जैक्ट भी मत जाना, कुछ क्या पता भाई उसकी छुट्टी हो उस दिन, है ना। तो फिर ऐसे बोलना कि उन्होंने मुझे एडवाइस करा था, एक ही टोल्ड मी कि हाउ मच ही लव्ड योर सर्विस एंड ही टोल्ड मी टू मेक अ वेबसाइट फॉर यू। तो फिर मैंने आपके लिए ना एक वेबसाइट बनाई थी। तो फिर अगर आपको देखनी है तो आप बताओ, बिकॉज मैंने देखा कि आपकी गूगल रिव्यू पे भी इतने अच्छे रिव्यूज़ थे। बट इसके बाद वाला पार्ट तुम पूरा ऐसे फ्लो में बोल सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज़, हेलो डॉक्टर झा डेंटल क्लिनिक से बात कर रहे हैं,
सर मेरे पापा आपके यहाँ पे आए थे 1-2 हफ्ते पहले। तो बोलेंगे हाँ जी बताइए, एंड देन यू गो ऑन विद द स्क्रिप्ट। फिर मत रुकना, फिर तो बोल दो अपना पूरा, फिर अपनी पूरी भड़ास निकाल दो, पूरा स्क्रिप्ट मतलब पूरी सेल्स स्क्रिप्ट मतलब पूरा सेल्स गॉड बन जाओ, ठीक है। ओके, अब चैलेंज ये है, ये 3 डेंटल क्लिनिक्स हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रिप्ट बताई है, इनका नंबर देख लो सब लोग, ठीक है, नंबर देख लो, एंड मेक श्योर दीज 3 डेंटल क्लिनिक्स हैव अ वेबसाइट विद इन 2-3 वीक्स। जो भी भेज देगा जस्ट कॉमेंट बिलो, आई गिव यू 1000 रुपीज़, दिस इज माई नंबर एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स कितने लोग इन तीनों को कर पाते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग 1000 रुपीज़ फॉर मी एंड यप। ओके, सो मूविंग ऑन, हमने स्क्रिप्ट की बात कर ली, सेल्स टैक्टिक्स की बात कर ली, अब ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। यार वो किस किस चीज़ पे मना कर सकते हैं? वो बोल सकते हैं मैन आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, यू नीड टू स्टॉप बॉदरिंग मी। तब क्या करोगे, है ना? इट्स लाइक क्वाइट एन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो फिर ऑब्जेक्शंस आर समथिंग विच आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सेल्स। अगर तुम अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट भी दोगे, समटाइम्स पीपल आर जस्ट हैविंग अ बैड डे, ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर यूर पोलाइट। तुम कितने भी एरोगेंट हो, यू नीड टू एक्ट लाइक एकदम वीक बच्चे की बात उनसे बात करो। हेलो, क्या मेरी बात यहाँ से हो रही है? नो मैटर तुम्हें कितना मर्द लगना है, नो मैटर हाँ तुम्हें बहुत मर्दानगी दिखानी है, अब नहीं दिखा सकते तुम, बिकॉज यू नीड टू मेक द अदर पर्सन फील लाइक गॉड, ठीक है। दी मोर यू अप्रिशिएट देम दी मोर इट विल बी गुड। अब ये बस लोकल बिजनेसेस के साथ ही काम करता है, ठीक है। तुम गए डॉक्टर झा को, यू मेक हिम फील कि सर मेरे पापा तो एकदम ही खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि अरे यार तुम क्यों परेशान कर रहे हो, तुम क्लाइंट तो हो नहीं, तो फिर तुम ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? तो सर सॉरी सर, मैं तो पापा आपसे कराने आए थे, तो फिर मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था। ऐसे करो आराम से, इट विल बी चिल, है ना। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्शंस, एंड इफ़ यू आर गेटिंग द सेम ऑब्जेक्शन मल्टीपल टाइम्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट मी, टेल मी व्हाट द ऑब्जेक्शन इज, आई हेल्प यू आउट पर्सनली, जस्ट ड्रॉप मी द ऑब्जेक्शन, मैं वॉइस नोट फिर कॉल कर लूँगा तुम्हें, आई टेल यू व्हाट हाउ टू कम ओवर दिस ऑब्जेक्शन एंड बूम आई हेल्प यू आउट। तो वॉल्यूम से मेरा मतलब है कि तुम्हें कितनी कोल्ड कॉल्स करनी है एक दिन में, ठीक है। मान लो मैं 12 बजे बैठ गया एंड मैंने डेंटिस्ट को कॉल्स लगाना स्टार्ट करा, अब मैं कितनी कोल्ड कॉल्स टारगेट करूँ? सो इनिशियली वंस यू स्टार्टिंग आउट, तुम अपने प्रेफर्ड नीश पे मत जाना, उसके आसपास वाली में ट्राई कर लेना, जिसमें अगर तुम फकअप भी करोगे, मैसअप भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग में 10 कोल्ड कॉल्स अ डे करो 3 दिन तक, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर यू, 10 कोल्ड कॉल्स करनी है 3 दिन तक। अब उसमें 10 तुम डायल 20 को करोगे, बस 10 लोग उठाएंगे, ठीक है। अब 10 लोग उठाना मीन्स इज 10 कोल्ड कॉल्स, अब 20 लोगों को डायल करना डज नॉट मीन 20 कोल्ड कॉल्स, तुम्हें 10 लोगों से बात करनी है, ठीक है, दैट इज़ द गोल। अब तुम्हें हर रोज़ ये 10 करना है 3 दिन तक, विद तुम उस 30 कोल्ड कॉल्स में इतना सीख जाओगे ना कि ये मना कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं, ये गुस्सा हो रहे हैं, किस चीज़ पे गुस्सा हो रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देन टेक्स्ट मी, या फिर तुम अपना खुद से बैठ के एक बार सोचो, what is going on, why am I feeling at this, why are they giving this objection, how can I make it feel like I'm their friend, how can I make it feel like कि अरे यार मैं तो सही में हूँ, ऐसे ही हूँ यार, मैं तो चिल बंदा हूँ, है ना। तो just think about it, send me the objections on the WhatsApp number, it won't be a worry, just chill, ठीक है। 3 दिन तक तो एकदम चिल करो, एकदम just try to identify कि ये क्या है। ये जो तुम 3 दिन स्पेंड करोगे ना, ये तुम्हारे सारे अगली कोल्ड कॉल्स डिक्टेट करने वाले हैं। बाद में चेंजेस करना थोड़ा बहुत लेस इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टार्टिंग के 3 दिन में जो तुम सीखते हो ना, इट्स सो फकिंग इंपॉर्टेंट। सो जस्ट सिट एंड अब्जॉर्व एवरीथिंग। चलो इसने गाली दी थी, किस पॉइंट पे गाली दी थी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया था, ये क्या कर रहा होगा, जस्ट थिंक, ठीक है, पॉन्डर करो एकदम। पर 3 दिन के बाद में रैम्प इट अप टू 30 कोल्ड कॉल्स अ डे। अब 30 कोल्ड कॉल्स अ डे साउंड्स वेरी लो, ठीक है, लोग 250 अ डे करते हैं, ठीक है। अब कंसिडरिंग तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, उतना टाइम नहीं है भाई, 30 ठीक है, ठीक है। यू नीड टू टॉक टू 30 पीपल, 30 पीपल से बात करने के लिए तुम्हें 60-70 लोगों को कम से कम डायल करना पड़ेगा, ठीक है। वो 50% पिकअप रेट मान के चल रहा हूँ मैं। उसमें भी मान लो तुम्हें कोई रिसेप्शनिस्ट मिल गया, रिसेप्शनिस्ट को बोलना कि अरे एक बार बंकू भैया से बात करा देना, कि झा जी से बात करा देना, उनके पर्सनल नंबर पे कॉल नहीं लग रहा था, उन्हें बोल देना कि इस नंबर पे वापस कॉल कर लें इसी फ़ोन से, ठीक है। जस्ट टेल हिम टू से दैट, ठीक है, जस्ट आस्क हिम टू से दैट टू द रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बोली, लेट मी गो ओवर इट अगेन। तो मान लो यू आर कॉलिंग टू अ डेंटिस्ट, राइट, एंड डेंटिस्ट का रिसेप्शनिस्ट उठाता है, व्हाट विल यू डू, यू आर नॉट एबल टू टॉक टू द डेंटिस्ट, ठीक है। तुम रिसेप्शनिस्ट को पिच करोगे, दिस वेरी लेस चांसेस कि वो डेंटिस्ट के पास सही में रहेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा यार कि ये ऐसी ऐसी बात कर रहा है, ही इज़ नो। तो फिर वो डेंटिस्ट के पास जाएगा भी तो बोलेगा कि एक बंदे को कॉल आया था, वेबसाइट बेच रहा है, वो तुम्हारे पिच के साथ नहीं जाएगा। तो फिर यू नीड टू मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू द डेंटिस्ट। अब तुम ये कैसे करोगे? तो फिर तुम रिसेप्शनिस्ट को बोलो, फिर तुम रिसेप्शनिस्ट के पास जाओ और रिसेप्शनिस्ट को बोलो, तो फिर तुम रिसेप्शनिस्ट के पास जाओ और उसे बोलो कि
तो तुम रिसेप्शनिस्ट को कॉल करो, उसे बोलो कि अरे झा जी का फ़ोन नहीं लग रहा है, उनको बोल देना कि इसी नंबर से मुझे इस नंबर पे कॉल बैक कर दें, एक बार उनसे अर्जेंट बात करनी थी। अब तुम्हें कॉल बैक आएगा उस नंबर से। अब डेंटिस्ट बोल रहा होगा, तुम डेंटिस्ट को सेम पिच दे दो, ठीक है। यू आर लाइंग टू द रिसेप्शनिस्ट, बट हु गिव्स अ फक, यू गोइंग टू मेक अ शिट टन ऑफ मनी, ठीक है। एंड यू फिर तुम्हें 30 कोल्ड कॉल्स अ डे करनी है, ठीक है। अब एक दिक्कत आती है जो कि हम ठीक कर सकते हैं। तो फिर दिस इज़ अ ग्रुप 50K विच आई हेल्प गाइज मेक 50K रुपीज़ ऑनलाइन। अब वो क्या करते थे, वो जब भी कोल्ड कॉल करने बैठते थे वो लिखते थे नंबर 1 उसका नेम और उसका नंबर, ठीक है। नॉट आंसर्ड, कॉल आफ्टर 5, ठीक है। नो आंसर, नो आंसर, नो आंसर, नो आंसर, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, सेंड ऑन वेबसाइट, नो आंसर, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, यस इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसे कैसे करके दे यूज टू मेक नोट्स। अब तुम कह रहे हो कि यार इसकी क्या ज़रूरत है ना, इसकी क्या ज़रूरत है। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एक्चुअली डूइंग दिस एंड यू आर एबल टू सी योर प्रूफ कि तुम काम कर रहे हो इन अ नोटबुक, दैट हेल्प्स योर माइंड सेट आउट सो डैम वेल, ठीक है। तो व्हाट आई वांटेड टू डू इज़, जहाँ भी तुम कॉल कर रहे हो उसका नाम लिखो, नंबर लिखो, बिकॉज उस टाइम पे नहीं आएगा आंसर, ठीक है। मान लो नहीं आया आंसर, वो बिजी था, 15 मिनट बाद कॉल आ रहा है, भाई वो नंबर दिखा रहा है, तुम्हें क्या पता यार किसका कॉल है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है, तुम्हें डेंटिस्ट का नाम भी नहीं पता। तुम अपनी डायरी में जाओगे, चलो अच्छा 3416 एंड हो रहा है, देखो 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 देखो, अच्छा हाँ ये सही है, ये सही है। तो फिर इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन समथिंग लाइक दिस, इट्स लाइक यू आर जस्ट लाइक, उसने देखो यार रेटिंग भी लिख रखी है कि जब कॉल बैक आएगा तो फिर मैं क्या बोलूँगा, है ना। ये जिम की बात कर रहे हैं, देखो MMA क्लब क्लब क्लब, तो फिर इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऐसे लोगों को तो लाइक आई एम जेन्युइनली गोइंग टू क्लैप फॉर यू बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली एक्सेलेंट, ठीक है। तुम्हें करनी है 30 कोल्ड कॉल्स डे। उसके बाद में अगर नहीं आ रहे रिजल्ट्स, ऑल करो, कॉल मी, ट्राई टू टेक्स्ट मी, आई हेल्प यू आउट पर्सनली, बट और करो और करो और करो, बिकॉज तुम फेल करोगे, यू विल फेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट तुम्हें बस 3-4 क्लाइंट्स चाहिए ब्रो, तुम्हें बस 3-4 क्लाइंट्स चाहिए, उसके बाद में तुम्हारे बन जाएंगे 20-30 हज़ार रुपये। 3-4 क्लाइंट्स चाहिए बस। यू नीड टू पोजिशन योर वेबसाइट्स फॉर अराउंड 10 to 20,000 रुपीज़। अब मैं बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, होल्ड ऑन। कमिंग बैक टू द टेक पार्ट, अब तुम्हें याद है हमने एक प्रॉम्प्ट डाला था, लेट्स गो लुक एट द वेबसाइट, राइट, ठीक है। तो फिर अब ये हमारे डिज़ाइन प्रीव्यू दे रहा है कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कन्वर्टिंग बहुत होगा। मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट डिज़ाइन। अब ये क्या करेगा, मैंने तो बस इतनी सिंपल सी बात बोली थी, बहुत ही सिंपल सी बात बोली थी, देखो इट विल स्टार्ट मेकिंग द वेबसाइट, ठीक है। तो मेकिंग द वेबसाइट इज़ एब्सोल्युटली वेरी सिंपल। बूम भाई, इसे बनाने में 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट में आई हैव मेड सच एन ऑसम वेबसाइट, एकदम प्रॉपर कन्वर्जन बेस्ड है। इसमें तो मैं बहुत सारे चेंजेस ला दूंगा, उसकी मैं फ़ोटो डालूंगा, उसके मैं बुक अपॉइंटमेंट वाले लिंक काम कराऊंगा, यू नो व्हाट्सएप वगैरह का डाल दूंगा। अभी तो बहुत चेंजेस ला सकता हूँ मैं। देखो टेक अ लुक एट दिस वेबसाइट, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो फ़ोटो, बूम, एक्सट्रीमली सिंपल। व्हाट्सएप लिंक खुल जाता है, इसको प्रेस करके सीधा कॉल का बटन खुल जाता है, दैट्स ऑल यू नीड। आई हैव सोल्ड दिस वेबसाइट फॉर 12,000 रुपीज़। तुम्हें ऐसी 3 बेचनी है, यू हैव 36,000 रुपीज़। 3 बेचनी है तुम्हें, एंड आई एम आस्किंग यू टू डू 30 कोल्ड कॉल द डे। तो फिर तुम्हें फेलियर रेट बहुत हाई पता चल रहा है, यू नो द फेलियर रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई। बट ऐसी वेबसाइट बनाने में मुझे 1 घंटा लगे था, उसमें भी मैं बहुत छोटी 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 डिटेल्स ठीक करा था एंड में, बट मेन जो इसे बेस बनाने में ना 12 to 13 मिनट्स लगे होंगे मैक्स। एंड आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है। आई सोल्ड इट फॉर 12,000 रुपीज़, ठीक है। ऐसे तुम 3 वेबसाइट बेच दोगे, जस्ट थिंक ऑफ हाउ इनसेन इट विल बी, ठीक है। यू नो द टेक पार्ट एज वेल। अब तुम कह रहे हो यार मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कहाँ कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें जाना है youtube.com पे, तुम्हें सर्च अप करना है समन्यू कोड्स। तुमने समन्यू कोड्स सर्च अप करा, गो टू दी चैनल, सर्च अप वीडियोज़ and watch this video, how to actually get good at vibe coding, full vibe coding guide. Watch this video, it will be absolutely insane. तुम्हें A to Z पूरा पता चल जाएगा how to actually vibe code, ठीक है। If you are still confused, you can check out this video as well. It's absolutely awesome. Coming to the mindset, this part is going to be tough for people. Stick around for this part. ये may be video का सबसे important part है, ठीक है। For this, try to text me, I'll be able to help you out very clearly there, because बहुत लोगों की पर्सनल लाइफ्स होती हैं, बहुत पर्सनलाइज्ड होता है। मैं यहाँ पे सबके लिए अलग अलग माइंडसेट बता नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बट दिस माइट एज वेल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द माइंडसेट,
हाउ डू यू एक्चुअली हैव टू थिंक, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या सोचना है. तुम फेल करोगे बार बार, तुम्हें क्लाइंट घोस्ट कर देगा. तुम वेबसाइट दे दोगे फिर भी तुम्हें क्लाइंट नहीं पैसे देगा. ऐसा ऐसे इतना बुरा बुरा होगा. हाउ डू यू स्टिल कीप गोइंग? हाउ विल यू एवर बी एबल टू कम ऑफ दिस एंड बी एबल टू वर्क विद सच क्रेजी पीपल, मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तुम्हें क्या माइंड सेट रखना है, क्या सोचना है? हर रोज तुम डीमोटिवेटेड रहते हो. व्हाट डू यू हैव टू डू, राइट? बहुत कन्फ्यूजन है इसमें. माइंड सेट, यू नीड टू बी फकिंग डेल्यूजनल. डेल्यूजनल का क्या मतलब है कि अगर तुम फेल हो रहे हो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मतलब यार तुम सोचो, फॉर द फर्स्ट 6 months आई मेड 1730 समथिंग 35 रुपीज़. ओके, 1733. ओके, आई मेड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट 6 months. तो फिर फर्स्ट 6 months तक मैंने इतने ही बनाया. एंड वाई डिडंट आई क्विट? आई हैड क्रेजी डेल्यूजन, आई हैड क्रेजी सेल्फ बिलीव. इतना ज़्यादा सेल्फ बिलीव था ना कि भाई कुछ भी हो जाए, समन्यु कॉज तो मतलब बहुत ही अच्छा कर लेगा, एकदम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा. दैट क्रेजी माइंड से एकदम पागल रहो यार एकदम यहाँ से, कि तुम्हें क्रैकपॉट कहें लोग कि भाई तो क्रैक बंदा है, इससे दूर रहा करो, ये पता नहीं कुछ भी बोल देता है. ठीक है, तुम अपने ड्रीम्स के बारे में तुम अपने स्टोरीज़ के बारे में बात करो ना कि तुम्हें व्हाट इज़ योर गोल, तू नेक्स्ट 6 महीने में क्या अचीव कर लेगा. ऐसा लगना चाहिए भाई चल चल तू पागल है क्या? तुम बोलो कि अंबानी से बड़ा बनना है, ये थोड़ा सा चूतिया है. ठीक है, यू नीड टू बी रियलिस्टिक एज वेल. ठीक है, अब इफ़ 10 months ago आई सेट टू माई सेल्फ, मुझे 10 महीने में तन्मय भट्ट के साथ कॉल्स पे जाना है, प्रखर गुप्ता के ऑफिस जाना है, उसके साथ में काम करना है, AI ऑटोमेशन पे काम करना है, उसके साथ AI एम्प्लॉयज़ बनानी है उन लोगों के लिए. आई वुड हैव कॉल्ड इट कि ये तो अबे थोड़ा रियलिस्टिक बन, थोड़ा रियलिस्टिक बन. क्या सोच रहे थे? उनको कितना प्रूफ चाहिए? वो थोड़ा रियलिस्टिक बन. ठीक है, इट हैपेंड इन 10 months ब्रो. इट हैपेंड इन 10 months ब्रो. आई हैड दैट क्रेजी डिल्यूजन इन मी. लोग हंसते थे भाई. मैं अभी तक अपने स्कूल में जाके बताता हूँ, इतनी जलती है ना लोग, इतनी जलती है. मैं प्रखर गुप्ता का नाम ले लेता हूँ ना किसी के सामने, 2-3 लोग हैं बस जो सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग का इतना मुंह ही तुर जाता है भाई. वो सुनते हैं, वो चुप हो जाते हैं बस एकदम, वो कुछ बोलते ही नहीं है भाई. पीठ पीछे मेरी बुराई करते होंगे पक्का, मैं लिख के दे रहा हूँ. एंड आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू ब्रो, एंड आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू ब्रो. क्यों है भाई तू जेलस? जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल विल बी जेलस ऑफ यू ब्रो. यू विल बी वर्किंग विद सच क्रेजी पीपल, यू विल बी टीचिंग पीपल हाउ टू मेक सच क्रेजी मनी, एंड पीपल विल बी सो जेलस ऑफ यू. दे लुक एट यू क्रेजी, हंसेंगे भाई वो तुम पे, दे विल फकिंग लाफ एट यू. बट देन वंस यू एक्चुअली सक्सीड ब्रो, इतनी जलेगी ना उनकी, इतनी जलेगी, they'll stop talking to you. They'll be like, fuck man, they'll be so fucking jealous of you. Having that crazy delusional mindset is absolutely important. अगर तुम्हारे पास वो नहीं है ना, फिर तो तुम भूल ही जाओ. तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना 1 month में बनाओगे तुम इतना, मैं कह रहा हूँ फेल हो गए. मैं कह रहा हूँ तुम्हें 1 साल लग गया 50,000 या फिर 20,000 बनाने में. 1 साल लग गया, मैं कह रहा हूँ. यू टुक 1 year. इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए. But that entire 1 year that you spent, you have learned so many skills. Each time you fail, you learn so much. मैंने ना पहले बहुत कोल्ड DMs ट्राई करे थे इंस्टाग्राम पे. मेरी पहले मार्केटिंग एजेंसी हुआ करती थी. बहुत कोल्ड DMs ट्राई करे थे एंड उन पे नहीं करता था काम. फिर जब मैं प्रखर गुप्ता को पहली बार DM लिख रहा था, मैंने उस टाइम की स्किल्स यूज़ करी थी. उस टाइम की स्किल्स, मुझे उससे एक भी क्लाइंट नहीं आया था, बट वो स्किल्स थी ना मेरे पास. उसकी वजह से प्रखर गुप्ता को क्रैक कर लिया, बट मैं लोकल बिजनेसेस को नहीं कर पाया. Do you get me? Prakhar Gupta needed my skills. I had the skills of AI automation for making AI employees, और मेरे पास में DM लिखने की स्किल थी. I wrote the DM for him. इसका WhatsApp पे मेरे पास रिप्लाई आ गया. तन्मय भट्ट का मेरे पास में WhatsApp पे रिप्लाई आया. I have hopped on calls with him. ठीक है, just with the DM skills I had from back in the day. So what you're doing right now, even if you're failing, जितना फेल करोगे ना ब्रो, यू जस्ट टेल योर सेल्फ कि भाई तुम आगे जाके ना बहुत बहुत मस्त होने वाला है तुम्हारे लिए. यू वॉन्ट बी एबल टू, जब तुम प्रोग्रेस कर रहे होते ना, यू आर नॉट बीन एबल टू टेल. अब फ्यूचर प्लान्स ये अलग अलग होता है मैन सबके लिए. अगर तुम स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो यार, यू वांट टू यूज़ दैट 20-50,000 रुपीज़ फॉर समथिंग, यूज़ इट. आई एम नो वन टू टेल यू व्हाट टू डू, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तुमने थोड़ा सा भी, तुमने 10,000 भी बना लिया ना, मेरा नंबर है ये, इस पर टेक्स्ट मी. आई हैव द परफेक्ट थिंग्स फॉर यू. कैसे? अब आई एम वर्किंग विद सच क्रेजी पीपल. अब मैं इनको वेबसाइट तो बेचता नहीं हूँ, है ना, मैं वेबसाइट तो बेचता नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इनके लिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड व्हाट फ्यूचर प्लान्स आई हैव, व्हाट आई डू, यू हैव ऑलरेडी मेड a few thousand rupees, come to me, I'll help you out, don't you worry, I got you bro. फिर डेली एक्शनेबल स्टेप्स. आज के डेली एक्शनेबल स्टेप्स है, तुम्हें अपनी नीश डिसाइड करनी है, और नीश के आसपास वालों को, मान लो मैंने करा रियल एस्टेट वालों को मैंने करा, तो फिर मैं कंस्ट्रक्शन वालों को कॉल करके उनको कोल्ड कॉल करूँगा. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन वालों को नहीं चाहिए भाई वेबसाइट, नहीं चाहिए उनको वेबसाइट, बट मैं कोल्ड कॉल करके बोलने से यार थोड़ा सा वो हो जाऊँगा, आई विल गेट फेमिलियर टू इट. ठीक है,
दैट इज़ द गोल. Yeah, that's it for this video. All I want to do is कि नीश सेलेक्ट करो. कोई दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा. टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप इफ़ एनी कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है ना, ट्राई टू टेक्स्ट मी, आई हेल्प यू आउट. आई रियली वांटेड टू मेक मनी बिकॉज यू गाइज विल कम बैक टू मी. ठीक है, नीश सेलेक्ट करो एंड आज 10 कोल्ड कॉल करनी है तुम्हें. ठीक है, फिर अगर तुम रात को देख रहे हो अभी से बिजनेसेस का नाम और नंबर कहीं पे लिख लो, जैसे कि यू नो कि तुम करोगे. नहीं तो अगर तुम ये देख के जाने वाले हो ना भाई, तुमने अपने 40 पता नहीं कितने थोड़े काफ़ी हद तक बहुत सारा टाइम 30-40 20-30 मिनट्स भाई वेस्ट कर दिए हैं. ठीक है, एकदम वेस्ट करें हैं तुमने. बाय. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स टेक्स्ट मी. आई होप दिस वीडियो वाज रिसोर्सफुल. तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना, कुछ भी लग रहा है, कमेंट्स में डालो, टेल मी, शेयर करो दिस वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. Follow me on Instagram if you don't have WhatsApp as Samanyu Quotes. Boom. I'll see you guys. Bye bye.